Hello, guys. Welcome to another episode of the Uncapped Indians, and this is qualifier two. Sun Sunrisers Hyderabad. So, just an intervention. Krishna was supposed to do the anchoring, but I took over. Anyways, Sunrisers Hyderabad has won by 36 runs at the MA Chidambaram Stadium. A match similarly looked like the World Cup final, but this time India was batting first. Krishna, any thoughts on the game? I have been as silenced by you as Pat Cummins silenced the Chepauk crowd for some reason. But yeah, I mean, देखो, I think Rajasthan have to blame themselves without any due and all of that stuff. It was a game that was there in their kitty. The bowlers had already won it for them, as far as the first innings or how that went was concerned. Because, first of all, restricting the SRH batting lineup to 170 odd is in itself a huge achievement. उसके बाद आप जो है I mean, you made a mockery of it. मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आज राजस्थान ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया after having performed so well against RCB and chased down the target so well against RCB. I don't really know, what happened today. Sanju Samson could have probably stepped in. Rayan Parag played a very bad shot. That shot really wasn't needed at that time. And what was needed, was a partnership, because I think in 10 overs they required some 105 odd to win. और उसके Yeah, बाद problem ये हुआ कि all they had to do was to actually get a partnership going. पर unfortunate ये था कि nobody got going apart from Dhruv Jurel यार, and that was also too late for him to sort of strike the ball the way he was. Ankit, Rahul Tripathi was very impressive for his 37 ball 15. But Henrik Klaasen is back in form and he is in the South Africa T20 team. Kya lagta hai? Henrik Klaasen's innings today? I think he's back. yeah. I mean, crunch situation, he backed himself and he played. He started very slow and then he started hitting across the boundary. तो वही है यार, क्लासन का टीम भी ऐसा है ना यार कि उसका भी एक स्टोरी काइंड ऑफ बोलेगा ना, तो वो भी ओवर शैडो हो गया था बिकॉज ऑफ द क्विंटन डिकॉक फॉर हिज नेशनल साइड. And he said also, whenever I'll get a chance, I will definitely put runs for my team. And definitely that will work for the team. So आज वो हुआ. आज वो रुके, उन्होंने खेला. जब उन्होंने देखा कि माकरम आउट हो गया, राहुल त्रिपाठी आउट हो गया, he played very sensible innings. And it shows he is very calm-headed person. जो बैटिंग में एग्रेशन दिखता है, वैसे वो उनका नेचर नहीं है. He is very calm now. And that's what it is. He gave the respective जो बोलते हैं ना, स्कोर उन्होंने खड़ा किया 170, which was not, I feel like, good for SRH की बैटिंग लाइनअप के हिसाब से. बट या they defend अच्छा डिफेंड कर लिया उन्होंने अपनी बॉलिंग से. कृष्णा, संजू सैमसन ने बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव किया आज. ही गॉट ट्रेंट बोल्ट ऑफ कोर्स फ्रॉम वन एंड, बट दूसरी एंड से उसने चेन्नई के लाल रविचंद्र अश्विन को लेके आए. डू यू थिंक दैट मूव was a bit too overthought, or it was too odd to make at that point in time, or it made sense? It made sense, from the point of view that Ashwin understands the Chepauk pitch really well. But अगर आप देखो, they weren't really playing it in the center wicket, and they were playing it on a black soil wicket also. So the pitch was hard. It was very competing wicket, but both the teams actually didn't really bat well, honestly. And अश्विन से ही एक्सपेक्टेड है, whenever he comes in Chennai, क्योंकि धोनी भी उनको ऐसे यूज करते थे, अभी सैमसन भी वैसे यूज करने की कोशिश कर रहा है. अदरवाइज had it not been on Chepauk, डेफिनेटली ये मूव आपको देखने को नहीं मिलता फॉर श्योर. पर या आई मीन जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वाज चेन्नई, आई थिंक संजू सैमसन मेड दैट थोड़ा अंदर से, उनके डिसीजन, ये दिल वाला डिसीजन था, ये दिमाग वाला डिसीजन नहीं. तो अंकित, अगर आप इसकी बॉलिंग देखो राजस्थान रॉयल्स की, तो उनमें सारी विकेट 8 की 8 विकेट एक्सेप्ट रनआउट फास्ट बॉलर्स ने ली. आविश खान, ट्रेंट बोल्ट एंड संदीप शर्मा. बट जो राजस्थान रॉयल्स की विकेट ली है, वो सारी की सारी गेम स्पिनर्स ने पलटी है. डू यू थिंक कि द पिच प्लेड अ वेरी मेजर रोल? बाय द एंड ऑफ 20 overs it got so much deteriorated that it started producing spin, or it's just that Rajasthan batting was all over the place today? यार उसी हिसाब से देखा जाए तो ध्रुव जुरैल ने भी तो खेला. उन्होंने बहुत अच्छे शॉट्स मारे यार, अक्रॉस ऑल ओवर. पैट कमिंस को उसने मारा, उसने फिर देखा जाए तो शाहबाज अहमद को भी मारा. तो अगर वो थोड़ी देर, जैसे कृष्णा ने बोला ना, अगर if they would have stayed little bit, they would have
made the partnership, they would have easily won the match. But yes, स्टैट्स ये बोलता है 8 गेम में से 6 गेम वो लोग जीते हैं जिन्होंने पहली बैटिंग की. तो या तो प्रॉब्ली दैट इज आल्सो द फेवर. संजू सैमसन ने सोचा कि मैं टॉस जीत के पहली बॉलिंग कर लेता हूँ बिकॉज देयर विल बी ड्यू फैक्टर, बिकॉज हमेशा से ड्यू है. बट आज देयर वाज नथिंग एज सच. सो या दिस ईयर आई थिंक बिलोंग्स टू द पैट कमिंस अगेन. लास्ट ईयर भी था, प्रॉब्ली ये साल भी है. सो यही है यार. फाइनेंशियल ईयर चल रहा है क्या? कैलेंडर ईयर, उनका फाइनेंशियल ईयर चल लग रहा है. And one more stat, talking about one more stat, Pat Cummins has taken a 17 wicket in this IPL. So the record says that 19 wickets, which was taken by Shane Warne in 2008. Yeah. So this time, being as a captain, I'm telling you. So yeah, तो वही है. सितारे उनके एकदम सही चल रहे हैं इस समय. तारे एकदम सही चल रहे हैं. And there is still one match left. Probably he can broke that record. जो इतना टाइम हो गया है. So yeah. So I'll tell you something interesting about Pat Cummins. Okay, Pat Cummins is one of the few pedigrees of fast bowlers who's also renowned as a captain and has been successful as a captain. A few being the likes of Imran Khan and Kapil Dev. Obviously, Pat Cummins is going to take time to get there. But Pat Cummins, जब India आए थे तो वो मैच हार गए because of personal reasons. He had to go back to India, and at that time, Steve Smith was the captain. और उसने एक मैच जिताया था, एक मैच ड्रॉ किया था. ऑस्ट्रेलियन मीडिया एंड कमेंटेटर्स के पीछे पड़ गए कि आपने गलती कर दी है, इसको नहीं लाना चाहिए. Pat Cummins was going through a horrid time at that point in time. Then he comes back, beats India in WTC. Okay, then goes towards the Ashes. फर्स्ट टेस्ट मैच जो हेडिंगली में उसने खेला था, और नासिर हुसैन ने बहुत फेमसली कहा था, द गाय हैज आइस इन हिज वेन्स. ठीक है, वो रिटेन करता है 2-2. फिर आता है वर्ल्ड कप में इंडिया में वो 2 मैच हार जाते हैं. सब लोग पागल हो जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इज नॉट डूइंग वेल. ही विंस 9 consecutive मैचेस, takes the most gutsy decision as per Ravi Shastri to bowl first in Ahmedabad and silences an entire crowd. In a podcast, he said, "Ki, how do you maintain? What's your secret?" He's like, Australia has always had captains who are very macho. Okay. Yeah. I, on the other hand, try to create an environment जहाँ पे हम बोलते हैं players को कि आप अपनी families को लेके आओ. Be in a good team environment. आप ये मत सोचो on the field जो हुआ वो off the field आप मत सोचो. There should always be constantly, their fun has to be constantly happening around. And he's a very honest captain. When he was asked that what were your chances of winning the World Cup in India, he said they were 50-50. I was not sure. Okay? And he's not your regular Australian captain who's in your face और आपको एकदम बुली करेगा ये करेगा. वो शांत चुप रहता है. वो एकदम जब बोलना होता है तब बोलना है, और जिस चीज के बारे में उसको बोलना होता है ना उसको वो बोलता है. ट्रेविस हेड को लाने वाला पैट कमिंस है. शाहबाज अहमद ने एक इंटरव्यू में बोला था कि मेरे को रन पड़े कुछ भी हो, मेरे को पता है पैट कमिंस विल ऑलवेज बैक मी. जब वो पहली बार कैप्टन बना एसआरएच का, सबने पूछा कि भाई इसका क्या सीन है. उसने बोला ये मस्त आदमी है, तुम चिल रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. और एक स्मार्ट मूव पता है क्या किया है उन्होंने? डैनियल विटोरी को साथ रखा है पैट कमिंस के, who have worked together before to retain those ashes. And in the final, पैट कमिंस ने अपना डेब्यू केकेआर के साथ किया है. केकेआर इतना डेस्परेट था पैट कमिंस को, he was one of the highest sold players. वो तो लास्ट वाला वो खेला नहीं, वरना वो केकेआर की तरफ से ही खेलने वाला था. It's just that this year that he got selected for SRH. So Pat Cummins knows KKR inside out. Gautam Gambhir knows Pat Cummins inside out. It's going to be an absolute rock star of a match where both of them are intelligent cricketers just trying to sort of win the game. But आज पैट कमिंस ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया. उसने नहीं लिया, उसने क्रेडिट दिया डैनियल विटोरी को कि to get Shahbaz Ahmed, a left-arm spinner as an impact player, was Daniel Vittori's decision. And Shahbaz Ahmed has just impressed Ankit. Shahbaz Ahmed. So Shahbaz Ahmed was integral part of RCB setup in 2022. However, he was traded by SRH for Mayank Dagar. RCB में आते हैं, ये SRH में जाते हैं. उनकी क्रिकेटिंग जर्नी बहुत यंग एज से स्टार्ट हो जाती है, बट वो अंडर 19 हरियाणा के लिए सेलेक्ट नहीं होते हैं. तो उनको प्रमोद चंदेला करके जो क्रिकेटर रहते हैं वेस्ट बंगाल के, वो बोलते हैं आप बंगाल आ जाओ, यहाँ से क्रिकेट खेलो. और वो जाके तपन मेमोरियल क्रिकेट क्लब ज्वाइन करते हैं. वहां पे उनके कोच रहते हैं पार्था प्रीतम चौधरी, जिनको पता रहता है कि इनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि ये बाहर कहीं रहें और ये परस्यू करें अपना क्रिकेटिंग ड्रीम. तो उनको बोलते हैं एक काम करो, आप मेरे साथ मेरे घर पे रहो, आप मेरे फैमिली की तरह हो, कोई दिक्कत नहीं. वो अपना रणजी डेब्यू करते हैं वेस्ट बंगाल के लिए, अपना फर्स्ट क्लास भी डेब्यू करते हैं बंगाल के लिए. उनका फर्स्ट क्लास में 100 है और
लिस्ट ए क्रिकेट में उनका 300 है और 94 विकेट भी उनके फर्स्ट क्लास में। तो ये था उनका फर्स्ट क्लास का डेब्यू। वो अपना डेब्यू करते हैं इंडिया का जब शिखर धवन कैप्टन रहते हैं, जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच होता है। T20 डेब्यू करते हैं ऋतुराज के कैप्टनशिप में, जो बंगाल आप क्या बोलते हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट रहता है। तो दिस इज वॉट वॉट हिज क्रिकेटिंग जर्नी। जब वो अपना क्रिकेट खेल रहे थे वेस्ट बंगाल से, तो दादा वो टाइम पे प्रेसिडेंट हुआ करते थे बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के। तो वो बोला था उन्होंने कि ये लड़का बहुत दूर तक जाएगा। जिस हिसाब से उसका स्ट्रेंथ देखा जाए, इज वेरी वीक। जिस हिसाब से वो स्ट्राइक करते हैं सिक्स और सब कुछ, लोग बोलते थे यार भाई इतनी स्ट्रेंथ लाता कहाँ से है। उनके कोच बोलते थे कि ये घर में सिर्फ एक रोटी खाता था, बट इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ, इट्स ऑल अबाउट हिज प्योर टेक्निक। वो टाइम बहुत अच्छा करता है। और अगर स्टैट्स देखा जाए, शहबाज अहमद ऑलवेज परफॉर्म अगेंस्ट केकेआर एंड राजस्थान रॉयल्स व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर आरसीबी, एंड टुडे वी नो दैट कि उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की कमर तोड़ दी कमिंग टू दी केकेआर। सो डेफिनेटली इज गोना परफॉर्म, और might be will take a pivotal role for SRH against KKR. So yeah, this was about Shahbaz Ahmed. We can see his future also in Indian cricket team. मेरे को He will definitely. मेरे को स्पिनर से एक कृष्ण एक बात याद आई कि वी माइट एनकाउंटर सिमिलर पिचेस इन वेस्ट इंडीज, ओके? And when you have certain pitches in West Indies, if you talk about how the players are going to West Indies played, for example, Yashasvi Jaiswal, he got out to spin. Sanju Samson got out to spin. Shimron Hetmeyer got out to spin. Rahman Powell obviously got out to Natarajan, but the wicket was a little slow. Do you think that because IPL में आपको एक पाटा ट्रैक पे खेलने का आदत हो गया अभी, तो हल्का सा भी डिग्री में टर्न आएगा वेस्ट इंडीज में जाके, तो दिस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी मेजर रोल ऑन डिस्पाइट इंडिया बीइंग ग्रेट अगेंस्ट स्पिन? तो फिर पाकिस्तान पेस अटैक क्यों लेके जा रहा है? 5 बॉलर है, 5 पेस है। नहीं यार वो हमेशा अपने बैंक करते थे। इतना लेट भेजा उन लोगों ने टीम और उसके बाद ऐसा उन लोग क्यों कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बट यार सी आई मीन इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट्स गोना हैपन on that particular day, when it comes to a cup game, and especially in T20 cricket, we've all seen that anyone can actually beat anybody. आप मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूँ कि मतलब दिस इज बीन एक केस है, केस स्टडी है T20 क्रिकेट की। आप 38 ओवर बहुत अच्छा खेल लो, पर फिर भी अगर लास्ट के 2 ओवर आपने नहीं अच्छे खेले ना, तो दूसरी टीम लेके जा सकती है भाई मैच। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप लास्ट के 2 ओवर में 45-50 रन भी खा लिए, होता है ऐसा, और ऐसा बहुत बार हुआ। और ऐसा नहीं कि मतलब ये पॉसिबल नहीं, आज भी चाहिए था। बट यू लुक एट द 18th ओवर, एंड आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दैट 18th ओवर, जहां पे नट्टू भाई आए, ठीक है, उन्होंने 1 रन दिया और 1 विकेट लिया। दिस वेयर द मैच वाज किल्ड, ठीक है, बिकॉज दे some 54 runs, 3 रन में बन सकते हैं still with Jurel there, it was possible. But you look at, and one more plan that was evident from them, they knew कि हाँ उनके लिए ना, मतलब जो कटर्स हैं और जो स्लोअर बाउंसर्स हैं ना, जिस तरीके से लोगों ने यूज किया है राइट एट द एंड, फ्रॉम द 16th to 20th ओवर, आई थिंक दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक। दैट मी was an excellent spell, क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ पे अब गेम, of course they were picking up wickets, and Rajasthan also didn't really have as many gun batters to sort of follow, but just the plan and the execution and the way they fielded today, oh my, मतलब राहुल त्रिपाठी का ना वो छक्का हो गया था, और एथलेटिसिज्म दिखाया ना भाई, मतलब जो उसने वापस बॉल डाली अंदर, it was very very special. But T20 being such an uncertain game, where we saw Ireland beat Pakistan, then we saw USA beat Bangladesh in a series. These associate nations are getting somewhere, dude. कुछ तो है bro. भाई मैं बता रहा हूँ, so this World Cup, जितने भी associate nations खेल रहे हैं ना, and this T20 World Cup जो हर 2 साल में हो रहा है, ये इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनके बोर्ड्स और इनके प्लेयर्स एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं यार टू गेट थिंग्स गोइंग। एंड ऐसी कई सारी स्टोरीज हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल, ओमान का कैप्टन आकिब इलियास, ठीक है, 2022 में उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, एंड ही इज नाउ मेकिंग कमबैक एज अ कैप्टन टुडे। युगांडा में एक प्लेयर है अल्पेश रामजानी, वो श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे के साथ अंडर 16 और अंडर 19 खेला हुआ है, फॉर्च्यून ग्रुप में काम कर रहा था, कोविड में वो बंद हुआ उनका स्पोर्ट्स सेगमेंट, ही वेंट टू युगांडा सर्चिंग फॉर अ जॉब, फिर वहां से खेलने लग गया।
पापा न्यू गिनी फॉर दैट मैटर यार, मतलब उस टीम के पास फैसिलिटी नहीं थी। गांव में 5-5 के ग्रुप में ना वो लोग बना के खेलते थे और ऑनलाइन होती थी उनकी कोचिंग। जब वो क्वालिफाई हुए ना T20 वर्ल्ड कप के लिए, पीपल वर देयर टू रिसीव देम विथ टीयर्स इन देयर आईज। सो दैट इज व्हाट क्रिकेट मीन्स टू देम। एंड इसमें आईसीसी का ना एक बहुत बड़ा हाथ है। सो 2020 में उन्होंने एक सर्वे किया विद मेंबर बोर्ड्स, और उसमें ये पता चला कि वो सारे ये चाहते हैं कि भाई उनकी देश की जनता सिर्फ टीवी पे मैच देख ले ताकि अवेयरनेस स्प्रेड हो जाए भाई उस चीज के लिए। एंड इसलिए उन्होंने क्या किया कि इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप के साथ ना एक डील साइन करी टिल 2023, जिसमें अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट्स 50 देशों में आपको रीजनल मैचेस, वर्ल्ड कप के मैचेस, वुमेन्स क्रिकेट सब कुछ दिखाया जाएगा। इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट बढ़ेगा, और जो मेंबर बोर्ड जिनके पास फैसिलिटी नहीं है प्रॉपर स्ट्रीमिंग की, उनको वो चीज मिलेगी। सो दिस इन इटसेल्फ एंड 80 मिलियन लोगों ने जो है पिछले साल सिर्फ एसोसिएट नेशंस का वो देखा है, मैचेस देखे हैं। सो दैट इन इटसेल्फ जस्ट गोज टू शो द काइंड ऑफ स्टेप्स दैट आईसीसी इज टेकिंग, and Yeah. why it is important for these people, for these member boards, to just come in. And it's a great story. If Ireland beats Pakistan, today, आज इसलिए see, I'm not mocking Pakistan. Uh-huh. What I'm saying is that Ireland has been playing consistent cricket. They were Yeah. to beat England, in Bangalore in the 2011 World Cup. 2007 में they started off by beating Pakistan in the World Cup. Yeah. It's not like कि मतलब हमें हर वर्ल्ड कप में ये सब अपसेट्स देखने को नहीं मिलते. You look at Netherlands for that matter. It's coming good. Afghanistan was nowhere to be seen probably 5 or 6 years ago, but now look at the kind of Yeah. team they are. A formidable T20 team. चल ठीक है, मान लेते हैं कि मतलब टेस्ट में आना एंड वनडे में आना इनके लिए थोड़ा सा, बट लुक एट अफगानिस्तान इन T20, मतलब दे आर अ फोर्स टू रेकन विद भाई, लिटरली. ठीक है, एंड लुक एट नेपाल जैसे कंट्रीज में लोगों ने बोला है कि भाई लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी इकोनॉमिक्स वैसे सपोर्ट नहीं करती, उनका फाइनेंस उतना सपोर्ट नहीं करता कि वहां पे ऐसी फैसिलिटीज हो जहाँ पे स्ट्रीमिंग हो, जहाँ पे खिलाया जाए, लोग आए देखने के लिए, ग्राउंड्स की फैसिलिटी, अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीजें नहीं है. और आप स्कॉटलैंड जैसी चीजें में देख लो, नामीबिया जैसी चीजें में जैसे कंट्रीज में देख लो, दैट इज वेयर द गेम्स नाउ चेंजिंग. एंड आई थिंक 39% जो है बीसीसीआई लेता है भाई आईसीसी का रेवेन्यू आउट ऑफ ऑल दीस टूर्नामेंट्स. Yeah. Yeah. 39%, and 11% goes to all these associate nations. 11%, and it is shared amongst all the associate nations, and I'm not even kidding. अगर आप सिर्फ 1% बढ़ा दो, इस चीज का 1% बढ़ा दो, that in itself is going to be an exponential number, so that they can at least diversify their funds and try and see what they need. Yeah. And it's a great thing that the World Cup is going to USA. Yeah. और that in itself will actually at least start building. हाँ, मुझे मालूम है संजय मांजरेकर जी बोल रहे हैं कि कोई Southeast Asian. बनेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बट फर्क पड़ता है बॉस, फर्क देखो पड़ता है. पता है, एक कॉन्टिनेंटल कप चल रहा है पता है किसी को, उसमें कौन कौन खेल रहा है पता है? बल्गेरिया, जिब्राल्टर, हंगरी और रोमानिया, ये सब खेल रहे हैं अभी. ब्राजीलियन वुमेन्स टीम भी आ गई है अभी. हाँ, Yeah. देयर इज अ ब्राजीलियन वुमेन्स टीम नाउ. मैं बोल रहा हूँ ना, वेनेटुआ आइलैंड जो. And you can never associate a country like Brazil apart To from have football. football or volleyball, beach volleyball, whatever. Beach volleyball. Yeah. You can never associate them with anything else. Now they are picking up cricket bats. Okay, so T20 cricket is actually making a lot of difference in spreading अरे awareness. वो But I कोई just तो एक hope मैच test match cricket का भी मतलब अच्छे से हो जाएगा थोड़ा बहुत. कोई तो एक मैच था जिसमें किसी थाईलैंड या किसी के सामने एक ने 7 विकेट या 5 विकेट लिया था, 1 रन देके. बीच में हुआ था, मैं भूल गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है उसने, वो भी वुमेन्स क्रिकेट में था, हुआ था एक बार बीच में. No, I don't remember. होता है. पर अंडर 19 में अपने अपने लोग गए, उन लोगों को मतलब कुछ उसमें आउट कर दिया. क्या कहते हैं, 45 रन पे आउट कर दिया अपने बंदों ने नेपाल को. और अभी Yeah. एक मंगोलिया वर्सेस जापान का मैच हुआ था, बाप रे, मंगोलिया 12 रन पे आउट हो गई भाई. ऐसे मजाक उड़ा के तुमको चाहिए 11% के ऊपर रेवेन्यू, 12 रन, बताओ. अरे 12 रन पे ऑल आउट, और वो खेले भी 9 ओवर. ठीक है बहुत यार, tight सीख रहे fielding हैं थी. यार वो लोग, सीख रहे हैं. बहुत tight. हांगकांग भी एक टाइम पे बहुत बड़ा टीम था, वो कोरी एंडरसन वैंडरसन वहां जाके. हांगकांग लीग बहुत बड़ा चीज है. हांगकांग का एक प्लेयर है पंजाब किंग्स 11 में, मजाक से हट के उसको बेंच पे बिठा के रखा पूरा टाइम, बोला तो एक्सपीरियंस लेके जा बस.
कहाँ वो खेलेगा? जैसा को जैसा किट बैग लेके आया था वैसा ही किट बैग पेटी पैक लेके वापस गया है वो। हांगकांग का क्रिकेटर, मेरे को याद है, नाम भूल गया मैं उसका यार. But final two questions, Krishna. I know what your answer is, but give me three reasons why KKR. जीजी एंड जीजी नहीं यार Ankit Singh. Okay, sorry. सो अच्छा चलो ठीक है पहला रीजन जीजी ठीक है दूसरा रीजन सुनील नारायण ठीक है और तीसरा रीजन मैं क्रेडिट नहीं दूंगा मिचेल स्टार्क अंकित मैं क्रेडिट नहीं Oh. Ankit Singh, आई विल SRH नॉट and why? क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू अंकित SRH, Pat Cummins. अरे He's not gonna leave it. Pat पार्टी Cummins बदल is ली है one. Pat नहीं Cummins नहीं is one. KKR में no. Okay, three major players who's gonna Three major reasons. pivotal role. चाहे वो कोई भी हो, Three. Pat Cummins is one reason. So Pat Cummins is one reason. Travis Head and probably Abhishek Sharma. Hmm. Yeah. I'm a little confused between SRH and KKR. My three reasons of being confused is one, Pat Cummins. Second is SRH ने already एक मैच चेन्नई में खेल लिया है. They know how conditions operate. They know Yes. there is wind, there is no dew, etc. Third is KKR, again the same thing. KKR knows Pat Cummins well. Pat Cummins knows KKR well. So these two teams were expected in the final. I think Rajasthan just crumbled to that pressure. But Sunday, that is tomorrow, is the final Day at after tomorrow. the M.A. Chidambaram Stadium. It is the last match of the IPL. And thank you very much, guys, for supporting us during these 2 months of IPL. We probably made a few mistakes. We probably learned upon them, and we're getting better with time. We receive your good and bad comments. मैंने मच्छरदानी लगा दी है भाई, जो भी था वो. Thank you very much. मच्छर चले गए हैं, so thank you for that advice. But we will see you after the IPL also, because we're excited for the T20 World Cup. And please like, share, and subscribe. Thank you very much. Have a good night.